Hi guys, so we will today discuss one very important topic and the topic is bronchial asthma. Okay, so bronchial asthma is very important because they asked every year this question, right? So now let's discuss this question. So there are like two episodes in daytime, one episode nighttime, and also patient is using albuterol and FE1 is improved from 76 to 83% while taking the bronchodilator. What is the further treatment? Okay, first we need to understand this classification here. Okay, so if the symptoms are rare symptoms, okay, then it is step 1. If less than 3 to 5 days per week symptom is there, then it is step 2. So this case is step 2 basically. Night symptoms greater than 1 is there, then step 3. Daily symptoms step 4. Persistent despite treatment is step 5. Okay, so we understood this is step 2. Now let's discuss further the treatment. So we classified the asthma. Okay, now we need to understand that patient is already taking the albuterol, which is also known as the salbutamol. Okay, so now the salbutamol देने के बाद भी asthma control में नहीं आ रहा है, तो मतलब कि हमें एक controller medication देने की यहाँ बहुत ज़रूरत है, right? And the controller medication here can be the low dose ICS and ICS inhaled low dose inhaled corticosteroids में हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं फ्लूटिकासोन, ठीक है, ब्यूटीसुनाइड आता है बेक्लामिथाजोन आता है. ओके ओके, सो वी जनरली प्रेफर दिस वन, ठीक है. सो वी कैन ऐड दी फ्लूटिकोसोन 40 mcg BD, ठीक है, ये हम ऐड कर सकते हैं. नाउ तो ऑप्शन अब हम देखते हैं कि हम प्रेडनिसोलोन 10 mg क्यों नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ये जो होता है स्टीरॉइड ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं अक्यूट सीवियर एस्थमा में. ओके, वी जनरली यूज़ दिस इन अक्यूट सीवियर एस्थमा, राइट. एल्बिटरॉल को हम वेन एवर रिक्वायर्ड, नो, एल्बिटरॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकोस्पैज्म को ठीक करता है, ठीक है. इट डज नॉट रिड्यूस एनी इन्फ्लेमेशन, किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को ये कम नहीं करता है, तो जो कि मेन प्रॉब्लम है एस्थमा की, राइट. सो हम लोगों के लिए साबा को इफ सिम्टम्स अकर डेली, साबा अलोन जो है वो इनएडिक्वेट रहता है, साबा अलोन इनएडिक्वेट है हमारे लिए, ठीक है. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ एड फ्लूटिकोसोन प्रोपिनेट 40 mcg BD एज आई टोल्ड यू. नाउ चेंज टू साल्ब्यूटामॉल MDI ट्वाइस डेली. एज आई टोल्ड यू, एल्बिटरॉल एंड साल्ब्यूटामॉल इज द सेम नेम ओनली. So changing, or this just and also we just can't use regularly twice daily because it is used as maintenance therapy. Okay, it is used as maintenance therapy, so ये option भी गलत है हमारा, ठीक है. So the correct answer here is add fluticasone propionate 40 mcg BD, ठीक है. अब हम लोगों को एक चीज़ समझने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है कि हम ट्रीटमेंट समझे इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है. सो अगर रेयर सिम्टम्स है, स्टेप 1 है, तो जनरली व्हाट वी विल डू ICS, ठीक है, प्लस फॉर्मिटरॉल व्हेन नीडेड, ठीक है, फॉर्मिटरॉल व्हेन नीडेड. तो ये हमारा रहता है ट्रीटमेंट. इसके बाद हम लोगों के पास है लेस देन 3 to 5 डेज पर वीक. स्टेप 2 जो है, यहाँ पे हम लोग लो डोज ICS को ऐड करते हैं, ठीक है, लो डोज ICS को ऐड करते हैं. इसके बाद आ जाता है स्टेप 3. स्टेप 3 में लो डोज ICS के साथ साथ हम लोग फॉर्मिटरॉल भी यूज़ करते हैं, ठीक है. डेली सिम्टम्स में अगर है तो हम लोग मीडियम डोज ICS यूज़ करेंगे, प्लस हम लोग फॉर्मिटरॉल यूज़ करते हैं, ठीक है. इसके बाद स्टेप 5 में हम लोग यूज़ करते हैं क्या, स्टेप 5 में हम लोग यूज़ करते हैं हाई डोज ICS, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाई डोज ICS प्लस लाबा प्लस लामा प्लस और माइनस बायोलॉजिक्स, ठीक है. So this is the treatment we need to follow, and here we added the ICS. Okay, so yeah, this is the first question I would like to discuss. Second question is a female patient with known case of, okay, next question is a female patient with a known case of bronchial asthma. Okay, ये drugs वो use कर रही है already, meter dose inhaler. She now frequently nocturnal symptoms है, this is very important, including wheezing, breathlessness, जो कि उसको several times a week जगा देती है. What is the appropriate step of the management here? Okay, so we need to understand that asthma यहाँ पे diagnosed है already. She is on SABA, right, levosalbutamol जो है वो SABA हो गया, प्लस इपराट्रोपियम पे वो already है यहाँ पे, और नाइट सिम्टम्स जो हैं वो several times a week आते हैं, several times a week. So which class it will become, here we have discussed. So it is several times a week, it is step 3, right, several times a week, it is step 3. तो यहाँ पे वो step 3 पे है, ठीक है. तो हमने step 3 का ट्रीटमेंट क्या पढ़ा था, step 3 का ट्रीटमेंट था लो डोज ICS प्लस फॉर्मिटरॉल, ठीक है. तो लो डोज ICS के नाम क्या क्या पढ़े थे हम लोगों ने, फ्लूटिकासोन पढ़ा था, ब्यूटीसुनाइड पढ़ा था हम लोगों ने, प्लस फॉर्मिटरॉल पढ़ा था हम लोगों ने, प्लस साल्मेटरॉल पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है. तो ये हम लोग कुछ भी इनमें से दे सकते हैं उसको. तो द कॉम्बिनेशन इज व्हाट, लो डोज ICS प्लस लाबा, लो डोज ICS प्लस लाबा. जो लो डोज ICS है वो इन्फ्लेमेशन को ठीक करेगा, ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन को ठीक करेगा. और जो लाबा है वो एयरवे को ओपन करेगा,
ओपन करेगा फॉर लॉन्ग टाइम। सो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इंक्रीज द डोज ऑफ साल्ब्यूटामॉल न्यूबलाइजेशन, एज आई टोल्ड यू साल्ब्यूटामॉल जो है वो एक रिलीवर है। साल्ब्यूटामॉल को हम लोग कभी भी इन्फ्लेमेशन ठीक करने के लिए यूज नहीं करते हैं, सो दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। एड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ओरली, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ओरली नहीं हम लोग देते हैं, ये लोग हम हमेशा देते हैं एज आई डिस्कस प्रीवियसली ऑल्सो सीवियर एस्थमा अटैक्स में हम लोग देते हैं, सो अगेन दिस इज रॉन्ग। एड लाबा एंड ICS, yes this is the correct option as discussed here। and add montelukast, montelukast is an anti add on drug, okay। montelukast जो है वो एक तरह से एड ऑन ड्रग है, ठीक है, वो इट इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस व्हेन एस्थमा बिकम्स अनकंट्रोल्ड, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, ओके। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। पहले आप लोगों को ये टेबल को याद रखना है, टेबल के हिसाब से ट्रीटमेंट को याद रखना है, फिर आप लोगों ने सिम्टम्स को देखना है और सिम्टम्स के बाद आपने फिर मैनेजमेंट को डिसाइड करना है, दैट्स अ क्लू बिहाइंड दिस, ओके।